آج کے اس جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں نماز کی بعض حکمتوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام عبادات میں سب سے پہلے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادات کے تو بہت سارے اقسام ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کو ہی سب سے پہلے پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح وجہ اور صحیح حکمت اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو دین کی حکمت اور دانائی و سمجھداری عطا کر دیتا ہے، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 269 کے اندر ارشاد فرمایا، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے حکمت اور دانائی و سمجھداری عطا کرتا ہے، اور جس شخص کو حکمت اور دانائی دے دی گئی تو اسے سمجھ لو کہ بہت ہی زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی، بہت زیادہ بھلائی دے دی گئی۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے بعض علماء کرام نے نماز کی کچھ حکمتیں بیان کی ہیں۔ چونکہ جمعہ کا دن ہے، وقت محدود ہے، محدود اوقات میں نماز کے بعض حکمتوں کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ دن اور رات میں 5 وقت کا نماز فرض ہے، اور یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور جماعت کے ساتھ جب ادا کی جائے گی تو اس کا ایک امام ہوتا ہے، ایک امام مقرر کیا جاتا ہے۔ وہ امام نماز پڑھاتا ہے اور پورے جماعت کے لوگ، پورے مصلی اس امام کی تابعداری کرتے ہیں، اس امام کی اتباع کرتے ہیں۔ امام جیسے جیسے کرتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی کرتا ہے۔ جب امام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے، یہ لوگ بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ امام رکوع کرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے یہ رکوع کرتے ہیں۔ امام اٹھتا ہے، یہ بھی اٹھتے ہیں۔ امام سجدے میں جاتا ہے، یہ سجدے میں جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں جب امام سلام پھیر دیتا ہے تو اس وقت تمام جماعت کے لوگ، تمام مصلیاں سلام پھیر دیتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس نماز کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، ہمیں اور آپ کو تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، چونکہ اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حکم ہے۔ نماز جیسے ہی شروع ہوتی ہے تم امام کی تابعداری میں لگ جاتے ہو، امام سلام پھیر دیتا ہے، تب اسی وقت تم اس کی تابعداری سے نکلتے ہو۔ تو اسی طریقے سے پوری زندگی میں، پوری لائف میں تمہیں جماعت کے ساتھ رہنے کا ہے، اور تمہارا ایک امام ہونا چاہیے، تمہارا ایک امیر ہونا چاہیے۔ وہ امام، وہ امیر تمہیں کتاب و سنت کے روشنی میں گائیڈ کرے گا، اور تم اس کی اتباع اور پیروی کرو گے، تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گے، اور امیر کی اطاعت و فرما برداری مرتے دم تک رہے گی۔ جیسے نماز شروع کرنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک ہم نے امام کی اتباع اور پیروی کی، اسی طریقے سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے موت تک ہمیں اور آپ کو امیر کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہے۔ امیر کی اتباع اور پیروی اتنی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے واسطے کوئی کالا کلوٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی اتباع اور پیروی کرنا تمہارے واسطے لازمی اور ضروری ہے۔ تم ہو سکتا ہے کہ نہایت ہی خوبصورت ہو، بڑے ہی اسمارٹ ہو، لیکن وہ ایک ادنا سا غلام ہے، پھر بھی تمہیں اپنے خوبصورتی پر، اپنے اسمارٹ پن پر، یا تو اپنے مالداری اور زمینداری پر غرور اور گھمنڈ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں امیر کی اتباع اور پیروی کرنے کا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، امیر کا ہونا اور جماعت کے ساتھ رہنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ہاں، ہمارے بڑے بزرگوں نے اسی چیز کو، جماعت کی اہمیت کو سمجھ کر کے جگہ جگہ سردار وغیرہ بنائے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے سردار جو جماعت بنتی ہے اور جو سردار بنائے جاتے ہیں تو صرف عقیقہ اور شادی بیاہ کے واسطے وہ بنائے جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں میت ہو گیا تو جا کے قبر کھودنے کے واسطے لے کے جاتے ہیں، اور عقیقہ میں 2 حصہ لینے کے واسطے، اور اس قسم کے
चंद चीजें करने के वास्ते अक्सर जगहों की बात हम कर रहे हैं, आपके यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं। जबकि सरदार वही इमाम होता है, वही अमीर होता है जो किताब और सुन्नत का इल्म रखने वाला होना चाहिए, और उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों के जो मसाइल है दीन और दुनिया के दोनों का हल करे। सही बुखारी हदीस नंबर 7138 के अंदर बयान किया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर आदमी अपनी अपनी जगह एक जिम्मेदार है और हर एक से उसके जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। फल इमामुल्लज़ी अलन नास राइन व हुवा मस्ऊलुन अन रइयतिही, जो इमाम होता है, जो अमीर होता है, जो सरदार होता है, लोगों के ऊपर वो जिम्मेदार बनाया जाता है, उस सरदार से, उस अमीर से, उस इमाम से भी उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। हमें लोगों को नेकी की तरफ बुलाने का है और बुराई से रोकने का है, इसीलिए जमात बनाई जाती है और इसीलिए अमीर मुंतखब किए जाते हैं। और साथ ही साथ में आप हज़रात को ये बता दूं कि हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो जमात के जो अमीर होंगे उसकी हम सबको इत्तिबा और पैरवी करने का है, जब तक वो किताब और सुन्नत की रोशनी में हमारी गाइड करें। और अमीर की भी जिम्मेदारी है कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, उसे कल क़यामत के दिन उसके बारे में बात पुरसे की जाएगी, लिहाजा वो अपने जिम्मेदारी को समझते हुए लोगों को गाइड करें और किताब और सुन्नत के रोशनी में लोगों को लेकर के चले, उनके हर किस्म के मसाइल को, चाहे दुनिया का हो या दीन का हो, उसको हल करने की कोशिश करें। बहरहाल ये पहली हिकमत थी। दूसरी हिकमत हम आपको बताते हैं कि जब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो हमारा मुंह किधर रहता है? किबला की तरफ रहता है, खाना काबा की तरफ रहता है, उधर मुंह करके हम और आप नमाज पढ़ते हैं। गोया नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे दिल के अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हमारा मुंह जो है ना किबला की तरफ रहता है, यानी खाना काबा अल्लाह का घर बनाया गया है मक्का में, और वहां लोग हज करने के लिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर हज भी फर्ज किया है, अगर हमारे पास वहां तक आने और जाने का खर्चा हो, उसकी इस्तिताअत हो, उसकी ताकत हो। तो नमाज के लिए हम खड़े हुए, हमारे दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ कि हमें जमात के साथ रहने का है, एक अमीर की इताअत, इत्तिबा और पैरवी में रहने का है। हम जैसे ही नमाज में खड़े हुए, हमारे दिल के अंदर ये एहसास पैदा हुआ कि हम खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, अगर मालदार हो गए, जाने की इस्तिताअत और ताकत हो गई तो हम वहां तक जाकर के नमाज भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए हम और आप सब बना करके खड़े होते हैं, यानी मिलजुल करके खड़े रहते हैं। जब हम लोग खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के वास्ते तो हमें यह बताया गया है कि एक दूसरे के कंधे से कंधे और टखने से टखना, कदम से कदम मिल करके पूरी तरीके से चिपक करके सबको दुरुस्त करते हुए खड़े हो जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान सबको टेढ़ा करता है उसे डरना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं उसके दिल को टेढ़ा ना कर दे। अगर किसी का दिल टेढ़ा हो गया तो फिर उसे लाख समझाया जाए, उनके समझ में दीन की बातें नहीं आती हैं। इसीलिए दिल को दुरुस्त रखने के लिए, दिल को साफ रखने के लिए हमें यह हुक्म दिया गया है कि सफों को दुरुस्त कीजिए, अपने भाई के कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलकर के खड़े हो जाइए। हमें तरबियत और ट्रेनिंग दी जा रही है, मुसलमानों तुम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहना, एक दूसरे के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिला करके रहना। जब तुम सब में खड़े हो गए हो तो उस वक्त तुम्हारे दिल से किब्र और गुरूर को, घमंड को अल्लाह रब्बुल आलमीन निकाल देता है। वहां हो सकता है कि आपकी किसी शख्स के साथ अनबन हो, वो नमाज में खड़ा हुआ है, जब आप आते हैं देखते हैं कि मेरी उससे अनबन है, मेरी उससे दुश्मनी है, आप फिर भी उसके बाजू में आके खड़े हो जा रहे हैं, दिल से उस कीने कपट को निकाल करके खुरच करके फेंक दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसीलिए हमें नमाज में सब बस्ता रहने के लिए कहा है कि तुम लोग एक दूसरे के सब में मिल करके खड़े हो जाओ। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। देखो महमूद जो था वो बादशाह वक्त था और उसका गुलाम कौन था? अयाज था। जब दोनों नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो कंधे से कंधे मिला करके खड़े होते थे। यहाँ ऊंच नीच के फर्क को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खत्म कर दिया। कहा देखो बादशाह है और उसका गुलाम, उसका नौकर उसके कंधे से कंधे मिला करके खड़ा रह रहा है। यहाँ बादशाह और गुलाम की तमीज खत्म हो गई। अल्लाह कह रहा है मेरे दरबार में आओ, सारे के सारे इंसान बराबर हो। ऊंच नीच की जो तफरीक
शरीक है वो खत्म है, तुम सबको अपने दिल की सफाई करने का है और सबको मिलजुल करके रहने का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस के अंदर कि अल मोमिनो लिल मोमिने कल बुनियान, एक मुसलमान मर्द दूसरे मुसलमान मर्द के लिए एक इमारत की तरीके से है, यशुद्दु बादहु बादा, जिसकी एक ईंट दूसरे ईंट को मजबूती देती है। जिस तरीके से हम दीवार उठाते हैं तो ईंट को ईंट से जोड़ जोड़ करके दीवार बनाते हैं, तब जाकर के वो दीवार के अंदर मजबूती आती है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये तालीम दे रहे हैं कि तुम सबको भी इसी तरीके से मिलजुल करके रहने का है। आज हमारे सफों के अंदर इंतशार है, आज हमारे दिलों के अंदर इख्तलाफ है, आज मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमने और आपने नमाज को समझा ही नहीं है, नमाज की हिकमत को नहीं समझा। आज हमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीके से जो इत्तिबा और पैरवी करनी चाहिए थी वो इत्तिबा और पैरवी नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें और आपको चाहिए कि नमाज से जो हमें तरबियत मिल रही है इस तरबियत को जिंदगी भर कायम रखें और हम अपने भाई के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिल करके चलते रहे। चौथी हिकमत जो उलमाए किराम बयान करते हैं वो ये कि जैसे ही हम लोग अल्लाह अकबर कह करके तहरीमा बांध लेते हैं तो तब से लेकर के सलाम फेरने तक हम लोग कुरान की तिलावत करते हैं या तो दुआ व मुनाजात करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गोया हमें ये बता रहा है कि ऐ बंदा मोमिन, तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया गया। नमाज इबादत में सबसे पहली किस्म है। जैसे तूने नमाज शुरू की, नमाज शुरू करने से लेकर नमाज खत्म होने तक तुमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की, तुमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम की तिलावत की, दुआ व मुनाजात की, तस्बीह व तहलील की, दरूद पढ़ा, तो इसी तरीके से तुम्हें जिंदगी भर पैदा हुए तब से लेकर मौत तक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने का है, इबादत और रियाजत करने का है, दुआ व मुनाजात करने का है, तौबा व इस्तिगफार करने का है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करने का हुक्म दे रहे हैं उसी तरीके से करने का है। हम लोग नमाज की हालत में या तो खड़े रहते हैं या तो फिर रुकू करते हैं या तो फिर ले में जाते हैं और फिर उसके बाद बैठे रहते हैं। इस किस्म के जो हालात और कैफियत नमाज के बाद भी होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बता रहा है कि नमाज में ये जो हालात हैं और तमाम हालात में तुमने क्या क्या अल्लाह रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की, तो ऐ बंदे मोमिन नमाज के बाद भी तुम इसी किस्म के हालात और कैफियत में होगे तो हर हालत में तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने का है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा क़ज़यतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। देखो, जब नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अज़कार करते रहो, खड़े खड़े, क़यामन खड़े खड़े, क़ुऊदन बैठे बैठे, वाला जुनूबिहिम और पहलू के बल। यानी नमाज में जो कैफियत थी अल्लाह फरमा रहा है नमाज से वापस जाओगे तो फिर यही कैफियत तुम्हारी होगी, खड़े रहोगे, पहलू के बल रहोगे या तो लेटे वगैरह रहोगे, बैठे रहोगे, तो तुम्हें वहां भी अल्लाह का जिक्र करने का है, अल्लाह को याद करने का है। जब हम अल्लाह को याद करेंगे हर जगह तो फिर कभी भी हम बेहयाई और बुराई का काम नहीं करेंगे, गुनाह का काम नहीं करेंगे और इस तरीके से हम गुनाह के कामों से बाज आ जाएंगे, रुक जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह अकबर कहने से लेकर के सलाम फेरने तक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते जा रहे हैं। और हलाल चीजों से, जैसे कि बात करना किसी से, ये तो हलाल चीज है, सही जायज और चीज है, और खाना पीना ये भी सही चीज है। इसी तरीके से चलना फिरना ये कोई गलत काम नहीं है, लेकिन सलाह अकबर से सलाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन चीजों से मना किया तो हम और आप रुक गए। गोया हमें ये नमाज के जरिए से तरबियत मिल रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि आज देखो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज से भी तुम रुक गए। इन चीजों के दौरान एक दिन ऐसा आएगा, रमजान का महीना आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें कहेगा सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से और बीवी से हम मिस्त्री करने से रुक जाओ, वो भी तुम्हारे वास्ते हलाल है, लेकिन यहाँ से ट्रेनिंग लो, यहाँ से तरबियत लो, और जब छोटी तरबियत के बाद बड़ा जब हुक्म मिलेगा तो उस वक्त भी तुम्हें खाने पीने से
اور بیوی سے ہم مستری وغیرہ کرنے سے باز رہنے کا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور حکمتیں بہت ساری ہیں جو کہ وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم حلال چیز سے بھی رک گئے اور صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے۔ ہمیں یہ ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کے حکم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حلال اور صحیح چیز سے بھی رک گئے تو تمہیں حرام چیزوں سے، گناہ کے کاموں سے، منکرات سے بدجے اولا رکنے کا ہے، تو اسی لیے تم ان چیزوں سے بھی رک جاؤ۔ بہرحال نماز کی بہت ساری حکمتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں علماء کرام سے ان حکمتوں کو معلوم کریں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔